जैसे हमने अपने पहले वीडियो में देखा लिबरलिज्म के बारे में कि किस तरह से उसका ओरिजिन हुआ है, क्या उसकी डेफिनेशन थी और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उसके क्या एलिमेंट्स थे और क्या कैरेक्टरिस्टिक थे। अब हम इस वीडियो में देखेंगे अपना 3 मेजर फेजेस ऑफ लिबरलिज्म। क्या है मेजर फेजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मेजर फेज में आता है क्लासिकल लिबरलिज्म, देन मॉडर्न लिबरलिज्म एंड देन कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म। सो लेट्स सी व्हाट इज क्लासिकल लिबरलिज्म. Basically, it also called as a negative liberalism is focused on laissez-faire policy, and it focuses as on a free market economy. Its main thinker was John Locke, Thomas Paine, Montesquieu, Jeremy Bentham. John Locke wrote in his book Treatise of Civil Government. Adam Smith is also known as a classical thinker. So he advocated negative liberalism in his book Wealth of Nations. And with this, negative liberalism consider man as a rational individual. All human beings are equal and free. So उनका मानना है कि जो सभी ह्यूमन बींग्स हैं वो फ्री हैं और इक्वल हैं, उन्हें किसी भी स्टेट इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है. There is no necessity for state and society to interfere or regulate the life of individuals. The state is called as laissez-faire state and only maintenance of law and order of society. Economically, liberalism supports free market economy. It prohibits the state from interfering with the economic activity. Now let's see positive liberalism. Negative liberalism transformed into positive liberalism in the 20th century. Negative liberalism creating inequalities among people. In this backdrop, negative liberalism changed into positive liberalism because of two important factors, democracy and Marxism. In the 19th century, the gradual spread of democracy, whereby the common people came in to be provided with voting rights, demanded fundamental changes in politics. And the second factor is the advent and rise of Marxism that appeal to the workers to overthrow the exploitative inequality led to negative liberalism. अगर हम देखें मेनली क्या है डिफरेंस, जो क्लासिकल लिबरलिज्म था उनका मानना था कि स्टेट को फ्री होना चाहिए, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, ये जो ह्यूमन है वो रैशनल है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है. बट पॉजिटिव लिबरलिज्म क्या होता है कि इसमें धीरे धीरे थोड़ा चेंजमेंट आता है, इसमें डेमोक्रेसी और देर रीज़न दो मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे वो था डेमोक्रेसी और मार्क्सिज्म. डेमोक्रेसी के आते ही क्या हुआ कि लोगों को वोटिंग राइट्स मिला, और मार्क्सिज्म जो कि क्लासलेस सोसाइटी को मेनली फोकस करते हैं, उनके अकॉर्डिंग कोई भी क्लास नहीं होना चाहिए, कोई प्रोलेटेरियन नहीं होना चाहिए, कोई कैपिटलिस्ट नहीं होना चाहिए, ऑल आर इक्वल होने चाहिए, ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. तो ये दो मेनली इसमें आता है, फोकस करते हैं क्लासिकल एंड पॉजिटिव लिबरलिज्म. सो नाउ लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी हैज़ प्रमोटेड. पॉजिटिव लिबरलिज्म recommend freedom through the state. Freedom does not mean being free from the interference of the state but adhering to the social welfare activities of the state. इनका मानना है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर स्टेट का कोई इंटरफेरेंस ही ना हो, बल्कि हमें सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट, हमें सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को भी मेनली फोकस करना चाहिए. द इकोनॉमी मस्ट बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन can be adopted by the state to generate resources required for its of social welfare activities. Similarly, the state has power and authority to adhere to economic strategies like bank nationalization, minimum wages, and reservation of industries as public sector to bring in the upliftment of all sections of society. अगर हम देखें क्लासिकल लिबरल्स को तो वो कहते हैं कि स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, बहुत ही लीस्ट इंटरफेरेंस ना होना चाहिए. लेकिन वहीं अगर पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात करें तो वो मेनली चाहते हैं कि स्टेट का इंटरफेरेंस हो, स्टेट अथॉरिटी हो, बिकॉज स्टेट अथॉरिटी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट टू रेगुलेट ऑल द नेसेसरी स्टेप्स एंड पॉलिसीज, वेलफेयर पॉलिसीज. So this is positive liberalism. Now libertarianism, basically it is also called as a contemporary liberalism.
Due to positive liberalism, state interference in society and economy had precipitated problems like industrial sickness, economic inefficiency, less productivity, corruption, erosion of liberties of people and economic stagnation. क्या होता है जब पॉजिटिवलिज्म आ जाता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेस प्रोडक्टिविटी जैसे इकोनॉमिक इनफिशियंसी, करप्शन. तो क्या होता है जैसे कि पहले हुआ था, क्लासिकल लिबरलिज्म आया, उसकी इम्प्रूवमेंट में उसके पॉजिटिव लिबरलिज्म आया, लेकिन फिर उसके रेक्टिफिकेशन के लिए लिबर्टेरियनिज्म आया, जिसे कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म भी कहा जाता है. मेनली इसके थिंकर्स हैं एफ ए ह्याक, एम ऑक्सेट, कार्ल पॉपर, मिल्टन फ्रेडमैन, नोजिक. They are important among the supporters of libertarianism. In United Kingdom, Margaret Thatcher was a political architect of libertarianism. Basically, libertarianism is a reinvention and reapplication of classical liberalism in the second half of the 20th century and in the first half of the 21st century. तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो क्लासिकल लिबरल्स के कई ऐसे फीचर्स थे, एलिमेंट्स थे जो लिबर्टेरियनिज्म लोगों इन्होंने थिंकर्स थे इन्होंने फॉलो किए, और मेनली ये इसी का ही एक री इन्वेंशन है, री एप्लीकेशन था लिबर्टेरियनिज्म, जिसे कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म भी कहते हैं. कीप इट इन योर माइंड, बिकॉज कई बार कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में कि लिबर्टेरियनिज्म एंड एक्सप्लेन कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म, हाउ इट, व्हाट आर द चैलेंजेस, what are the challenges are going through this liberal ideology. सो कंफ्यूज मत होइएगा, क्लासिकल लिबरलिज्म अलग है और लिबर्टेरियनिज्म एंड कंटेम्प्रेरी लिबरल दोनों सेम ही हैं. बेसिकली इट बिलीव इन द वर्थ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल. जैसा कि हमने बताया, जैसे कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो भी मेनली दे आर फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स. लाइक दिस libertarianism also focuses on the worth and importance of individuals. It restricts the domain of the state to maintenance of law and order. As similar as classical liberalism also wants restriction the domain of the state to maintenance of law and order. Nozick famously coined that slogan, minimal state is inspiring as well as right. Basically, जो कंटेम्प्रेरी लिबर्टेरियन है, मेनली दे फोकस ऑन मिनिमल स्टेट, नो मच मोर इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट. सो हमने देखा यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर्स को, जो फेजेस थे यहाँ पे हमने देखा. एंड दिस इज़ द लिबरलिज्म आइडियोलॉजी. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. फॉर टुडे दिस इज़ इनफ. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. I would like to request you all, please like, subscribe and comment on my channel. If you need any another topic videos, so let me tell. I will prepare for you. Thank you so much.